Good afternoon, dear students. My name is Priyanka Gupta. Today I am going to teach you about the vaccination. Yeah, in the last lecture we have started with the human health and diseases chapter, and we have done with the what is health, what are the diseases, and what is immunity, what are the types of immunity, what are the types of helper cells, what are the types of cells, those who protect us from any antigens, or they are called as helper cells, killer cells, suppressor cells, memory cells. Okay, फिर we have studied with the beta lymphocyte and B lymphocyte and T lymphocyte cell. We have also studied with the antigen presenting cell. Today we are going to study with the vaccination. Now, what is vaccine? It's a vax means more. No, it's a VACCINE vaccine. What is this vaccine? The vaccines are nothing but the inactivated pathogen. लाइक हम लोगों को पोलियो का वैक्सीन लगता है, टीबी का वैक्सीन लगता है, खसरा का वैक्सीन लगता है। पोलियो, खसरा, टीबी, ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन विद BCG अगेंस्ट द टीबी। We take so many vaccines in our early childhood period. Okay, now अभी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन विच कॉजेज इन्फेक्शन, बट it is an efficient system most of the time. It either keeps microorganism out or track them down and get rid of them. Some pathogen can overwhelm the immune system. Body cannot fight with the every pathogens found in the atmosphere or found in the environment. Some pathogen they can cause so many problems. Okay, or some pathogens body cannot recognize them. So vaccination is the way to teach the immune system to produce the antibodies against the antigen. Antigens are the foreign substance, or antibodies are the soldier produced inside the body. Like चाइना के जो soldiers हैं, they are the antigens, and अपनी बॉडी इंडिया के जो soldiers हैं, they are the antibodies. Vaccination is an important form of the primary prevention. इट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक। ओके, हम लोगों को बचपन में टेटनस का, मीजल्स का, वूपिंग कफ का, पोलियो का वैक्सीन लगाया गया है, जिससे आज तक हमको पोलियो नहीं हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन, प्रोटेक्ट द सोसाइटी. See, vaccinations are very much safe because they are tested, they go through the many rounds of study, examination, research. Okay, you know what, how the vaccine can work? सबसे पहले immunity system has several type of cells. These cells defend against harmful pathogen. They have to recognize an invader. Vaccination teaches the body to recognize new pathogen causing the diseases. It stimulates the body to make antibody against antigen of pathogen. देखो, हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन वैक्सीन कौन कौन से फॉर्म में होता है? वैक्सीन जनरली शुगर के फॉर्म में होता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में होता है. It is a dead or inactivated form of a pathogen, a toxoid containing toxin produced by a pathogen, a weakened pathogen. When the body responds to the vaccine, it builds an adaptive immune response. जब बॉडी क्या करती है, वैक्सीन को रिस्पॉन्स करती है, तो बॉडी क्या करती है, अडाप्टेशन करती है, सक्सेसफुल एडजस्टमेंट कर. तो नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बहुत सारे वैक्सीन्स अवेलेबल है. लाइक अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ द कोविड-19 प्रॉब्लम, कोरोना प्रॉब्लम. कोरोना के भी वैक्सीन्स का सर्चिंग जारी है. कोरोना के भी वैक्सीन सर्च की जा रही है. नाउ अभी लाइक उसके बाद आफ्टर द वैक्सीन वी आर गोइंग टू स्टडी विद द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी.
देखो, दिस इज द यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर रहते हैं। यू नो व्हाट आर दी एंटीबॉडीज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, जनरली ज़्यादातर प्रोटीन होता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज होता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय दी दीज आर प्रोड्यूस बाय दी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा के जो सेल्स होते हैं, अपने ब्लड में जो प्लाज्मा होता है लिक्विड इन नेचर, उसके जो सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अभी दे कैन प्रोड्यूस अबाउट 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी इन अ पर सेकेंड। एक सेकेंड में कम से कम वो ऐसे 2000 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जनरली ये जो एंटीबॉडी होता है दैट इज़ अ वाई शेप स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर कि this is a y shaped structure. Okay, this has a two chains, इसके पास दो chains होती है। एक होती है मतलब एक होती है लाइट चेन, दूसरी होती है हैवी चेन। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द हैवी चेन एंड दिस इज हैवी चेन, दिस इज द लाइट चेन। सो टू चेन्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ लाइट चेन के भी दो रीजन्स होते हैं। लाइट एंड हैवी चेन के वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। वेरिएबल मीन्स वैरायटी, डिफरेंसेस। वेरिएबल मतलब दे कैन चेंज देयर पैटर्न अकॉर्डिंगली, दे कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। अभी दिस इज कॉल्ड एज द आर्म where light and heavy chains are joined, that is called as hinge or hing. Okay, these are connected together by the disulfide bond। डाई मतलब डबल सल्फेट के बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। Okay, this is the constant region of the heavy chain which cannot be changed, but this is the variable region which can be changed according to the structure of the antigen. And this area is also called as the antigen binding site, where antigen comes and bind. So for example, you can see this is the variable region. Here antigen, for example, this is any antigen comes and bind this way. Okay, so this is the binding region, this is the binding region, you can see. Okay, now अभी see, this variable region is called as the epitope, variable region is called as the epitope and lower part is called as the paratope, इसको paratope बोलते हैं। ना हम लोग देखते हैं कि अभी हाउ दी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी, देखो व्हेन एंटीजन व्हेन दी सॉरी व्हेन दी एंटीजन combine with the antibody, okay, antigen plus antibody is equal to antigen antibody complex is equal to what, antigen antibody complex, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, now each antibody is specific for a particular antigen। हर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रिएक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड पैराटोप। देखो, जहाँ पे कंबाइन होता है वहाँ, जहाँ पे कंबाइन एपीटोप पे कंबाइन होता है और नीचे की तरफ रहता है पैराटोप। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन। आपको तो पता है, देखो यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ एनी एंटीजन, ओके, एंड दिस इज़ व्हाट एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी को आके यहाँ पे पेयर किया है, ये एंटीबॉडी को आके यहाँ पे पेयर किया है, ये एंटीबॉडी को आके ये इसने यहाँ पेयर किया है, ये एंटीबॉडी को आके इसने यहाँ पेयर किया है। ओके, सो जब इन लोग पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। Now, you know what? There are so many antigens are present on our blood cells also। मतलब एंटीजन मतलब ये ही नहीं कि सिर्फ जो बाहर से आ रहे हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट और कोई भी प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, जो बाहर से आ रहे हैं दे आर एंटीजन, बट देर आर सो मेनी एंटीजेंस who are present on the blood cells also।
who are present on the blood cells also. So there are antigen present on the blood cells ABO. फिर देन उसके बाद RH, डफी, किड, लेविस, PMNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एट्सेट्रा. तो व्हाट आर दिस ABO? यू नो व्हाट अपना ABO ब्लड ग्रुप, अपना जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज़ अ ABO रहता है ना. हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव. तो ये क्या है, ये सब में अलग अलग या कुछ लोगों में सेम, ये ऐसा कैसा ब्लड ग्रुप होता है. सबसे पहले blood group A, B and O were discovered by the Carl Landsteiner in the year 1900. Okay. Later on blood group AB was discovered by the, देखो सबसे पहले A होता है ब्लड ग्रुप, फिर B, फिर O होता है. ऐसा 3 ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था. उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट डिकास्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 2 साल के बाद बताया कि बाबा AB भी ब्लड ग्रुप होता है, जहाँ पे A और B भी मिक्स होता है. ठीक है ना. ही फाउंड 2 एंटीजन्स और एग्लूटिनोजन, एंटीजन को हम लोग एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल. ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन AB. ठीक है ना. अभी देखो देर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O. ए बी को बोलते हैं हम लोग AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर. यूनिवर्सल मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है. ब्लड ग्रुप O वाला इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, वो A को भी ब्लड दे सकता है, B को भी ब्लड दे सकता है, AB को भी दे सकता है, O को भी, लेकिन वो ले सकता है सिर्फ O से. ब्लड ग्रुप A को ब्लड A का चलेगा, O का चलेगा, B को B का चलेगा, O का चलेगा. ठीक है ना. अभी जीनोटाइप देखो, जब जो जीनोटाइप रहेगा तो उसके हिसाब से फेनोटाइप चेंज होगा. लेकिन अगर आप फेनोटाइप मतलब आपको बताया है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन. अगर आपका बाहर का फीचर, बाहर का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, आप बाहर से पाउडर क्रीम लगा लिए, फेशियल करा के आ गए, लेकिन अंदर की वो आपकी चमड़ी अंदर से गोरी नहीं हो रही, वो कुछ एक टाइम के लिए. लेकिन अगर अंदर से आपका जेनेटिकल चेंज हो रहा है, किसी को कैंसर कैसे हो जाता है, अंदर से जेनोटाइप चेंज हो जाता है, जीन्स में चेंजेस होते हैं, तो बाहर वो दिख के आएगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते. तो ए का जो जीनोटाइप है दैट इज़ आई ए या तो फिर आई ज़ीरो. मतलब यहाँ ज़ीरो है, कुछ नहीं है, तो यही डोमिनेंट रहेगा. सेम वे बी का भी ऐसे आई बी आई ज़ीरो. ए बी में क्या रहेगा, ए बी में सिर्फ आई ए और आई बी, क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं. ओ में एंटीजन ही नहीं रहेगा, इसमें आई ज़ीरो, इसमें रहेगा आई ज़ीरो या तो स्मॉल आई भी बोल सकते हो. ठीक है. अभी ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप बी में बी, ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी और ओ में कुछ नहीं. एंटीबॉडी उसके अपोजिट में, ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा, बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा, ए बी में कुछ एंटीबॉडी नहीं, ओ में एंटीबॉडी ए और बी रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द ब्लड ग्रुप. सो नाउ इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी विद द RH फैक्टर. व्हाट इज़ RH मीन्स होता है रेसस मंकी. सबसे पहले RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द रेसस मंकी, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द रेसस मंकी. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर एंड वीनर इन द ईयर 1940 फ्रॉम द रेसस मंकी की बॉडी से. द पर्सन हैविंग RH फैक्टर को हम लोग डी एंटीजन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डी एंटीजन भी बोलते हैं. ठीक है. द पर्सन इज हैविंग RH फैक्टर डी एंटीजन आर कॉल्ड RH पॉजिटिव एंड दोज लैकिंग डी एंटीजन आर कॉल्ड एज RH नेगेटिव.
ठीक है ना। अब हम लोग बोलते हैं ना, जिस किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, तो जिसके पास आर एच फैक्टर है उसका ए पॉजिटिव होगा, जिसके पास आर एच फैक्टर नहीं है उसका ए नेगेटिव होगा। आर एच ब्लड ग्रुप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द हेमोलाइटिक डिसीजेस ऑफ द न्यू बॉर्न विच इज़ कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, अगर आर एच फैक्टर नहीं होता बच्चों में, या अगर सपोज इफ मदर if a mother is RH negative and she conceived a baby who is RH positive, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है। एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट होना, आरबीसी टूट जाते हैं, फीटलिस मतलब फीटस में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मीन्स आरबीसी ब्लास्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर मदर आर एच नेगेटिव है, मदर अगर नेगेटिव है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो बच्चा भी नेगेटिव ही होना चाहिए। बच्चा पॉजिटिव रहता है तो डॉक्टर को बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, स्टार्टिंग से उसको बहुत सारे इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं, जिससे कि मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो के भी मिक्स ना हो। क्योंकि क्या होता है, माँ से बच्चे को 9 महीने तक कहाँ से पोषण, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, माँ के पेट से ही ना। तो माँ के पेट से उसको ब्लड के थ्रू मिलता है, थोड़ी ना बच्चा अपना मुंह खोल के चबाता है, खाने को खाता है। तो नाउ he or she is getting the nutrition from the mother's blood only. So when the mother's blood mixes with the child blood, so the child blood get clot, or the antigen present in the child blood, antigen, different antigen is present, because he is having child is having RH positive and mother is having RH negative. तो negative मतलब RH factor is not present in the mother, antigen D is not present in the mother, and it is present in the child, uh, so that reaction occurs in the mother, and the reaction occur in the child blood. And when the reaction occurs in the child blood, so that child rbc started blasting means what, child rbc started breaking down, so that is called as the erythroblastosis. That is called as the what, erythroblastosis. So here we are going to stop with the lecture. I hope you all understood the lecture. If you have any doubt, you can ask me any time. Okay, have a good day. Bye everyone.